Hello guys, once again we welcome to our class of English where we learn to write a report. So in our earlier section also we learned the definition of report writing, we learned the format, we also learned the main parts about which we have to write in our report writing. So this is our next section, second part of the video, where we learn what is the report writing, what are the important tips that you have to keep in mind while writing a report. So let us start. First of all, we have to understand what the report is a written document, it is a written composition. Okay, in other words we can say it is well prepared, it is well prepared talk about a particular subject. It is a vivid expression of a personal experience. Vivid means very clear. It is the clear expression of personal experience about a topic. ठीक है, about a topic which you heard, seen or done, or which you have studied very carefully. It meant to be published और it meant for the broadcasting also. इसका मतलब हम इसको पब्लिश भी करा सकते हैं, हम इसको ब्रॉडकास्ट भी करा सकते हैं. तो इन रिपोर्ट राइटिंग हमें क्या करना होता है? इन रिपोर्ट राइटिंग वी हैव टू प्रिपेयर द particular subject in a well organized way, and the information is about the topic which we heard, which we have seen, which we have done or study very carefully. So the most common example of the report writing is seen in the newspaper. Actually, reports are prepared for the newspaper. Not only the newspaper, we also use the reports for our academics also. Those are used in the form of a magazine. In the form of magazine we use. So now you will see different types of reports, like a newspaper report, a report about the event or function. This can be the academic. Okay, this can be written in newspaper and also in the मैगजीन ऑल्सो. न्यूज़पेपर में तो कैसे कि अगर कोई चीफ गेस्ट कहीं पहुंचा है वो रिपोर्ट लिख रहे हैं तो वो न्यूज़पेपर में हो गया. और एकेडमिक से कैसे, अगर स्कूल में कोई फंक्शन वगैरह कोई इवेंट हो रहा है और उसके लिए हमने रिपोर्ट बनानी है तो वो एकेडमिक से रिलेटेड होगी है. ठीक है. थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि रिपोर्ट अबाउट एन एक्सीडेंट हैपनिंग. हाँ, कहीं पे कोई दुर्घटना हुई है, कहीं पे कोई ऐसा हादसा हो गया है जिसको हमने विटनेस किया है, उसके बारे में भी वी कैन प्रिपेयर अ रिपोर्ट. रिपोर्ट अबाउट द इंक्वायरी और द सर्वे. अगर हमने कहीं पे कोई सर्वे किया है, ठीक है, सर्वे का मतलब हमने किसी प्रॉब्लम के लिए डाटा इकट्ठे किए हैं, फैक्ट इकट्ठे किए हैं ताकि हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस दिखा सकें, इसलिए हमने सर्वे किया है, तो उसके ऊपर भी कोई रिपोर्ट लिखी जा सकती है. तो इस तरह से ये 4 तरीके से रिपोर्ट लिखी जा सकती है. सो वाइल यू राइट अ रिपोर्ट यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट सम ऑफ द पॉइंट्स. द पॉइंट्स आई एम नाउ गोइंग टू डिस्कस. आपको जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो कुछ पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा. वो कौन से पॉइंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बी फैक्चुअल एंड डू नॉट एड एनी इन्फॉर्मेशन ऑन योर ओन दैट मे सीन फिक्टिशियस. वो कहते हैं यू हैव टू प्रेजेंट द फैक्ट्स. Okay, you have to present what you have seen there, actually what you have gathered in truth. ठीक है, आपको सिर्फ सच बताना है. You cannot add information by your own, you cannot use your imagination because the reports are based on the past events and you have to present only the facts there. You cannot add some of your own points. Next point, you have to write in indirect speech and you will write in passive voice. Of course, yes, indirect speech means we have to use the sentence in our own language. It means we cannot say the people said, comma, inverted comma. ठीक है, वी हैव गैदर्ड हियर, लेकिन हमें इसको बनाना है द पीपल एट देयर सेड दैट दे हैड गैदर्ड. ठीक है, अपनी भाषा में वहाँ पे लोगों ने ऐसा कहा. ठीक है, इट इज़ अंडरस्टूड, ये समझा गया. ऐसे पैसिव वॉइस बनाने हैं, यानी कि हमने कोई भी डायरेक्ट स्पीच नहीं यूज़ करनी, कोई हमने एक्टिव वॉइस यूज़ नहीं करना, बिकॉज हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन उस काम को कर रहा है, हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, रिपोर्ट तैयार करनी है. तो ऐसे सिचुएशन में हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं. आपको पता है ना कि एक्टिव वॉइस कब यूज़ करते हैं? एक्टिव वॉइस एक्चुअली हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको जानना होता है कि कौन है जिसने ये क्राइम किया है. ठीक है, हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं जो हम जानेंगे कि क्राइम कौन कर रहा है. यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे, रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे कि ऐसा ऐसा वहाँ पे हुआ था, लोग कह रहे थे कि ऐसा क्राइम उसने कुछ किया है या उसकी वजह से कुछ हुआ है. तो ये सिर्फ हम ना पैसिव वॉइस फॉर्म में लिख सकते हैं.
ठीक है, इट इज़ टोल्ड बाय द पीपल देयर, इस तरह से। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपने ज़रूर ही। राइट इन द थर्ड पर्सन फ्रॉम एंड अवॉइड यूजिंग प्रोनाउन लाइक आई, मी एंड यू। ऑफ कोर्स यस, ये आपके पर्सपेक्टिव से नहीं लिखनी है रिपोर्ट। रिपोर्ट हमने बिल्कुल अनबायस्ड होके देनी है, ठीक है, किसी का फेवर ना करते हुए थर्ड पर्सन की पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी है। आई थिंक सो, ठीक है, माई फ्रेंड थिंक सो, या फिर यू ऑल्सो थिंक सो, इन बातों को बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। ऑल द पीपल, उनके नज़रिए से देखना है। नेक्स्ट, अवॉइड इम्पोजिंग योर पर्सनल ओपिनियन। पहले ही बताया है कि पर्सनल ओपिनियन, फॉल्स इंफॉर्मेशन यू शुड नॉट गिव देयर, यू शुड नॉट गिव एनी कंक्लूजन बेस्ड ऑन दोज fictitious informations. Of course, in next point you have to give the answer of 5 W's. okay, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, क्यों हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है, हूँ यानी कि कैसे हुआ है, या फिर कौन करने वाला था। यू कैन ओनली गेस, आप ये नहीं कर सकते कि उसने ही किया है, ठीक है। हम कहते हैं कि पीपल टोल्ड दैट इट हैज़ बीन डन बाय हिम, ठीक है। हम अपना गैस नहीं कर सकते कि उसने किया है, नहीं, क्योंकि हमारा तो पर्सपेक्टिव लिखना ही नहीं हमने, ठीक है। तो इस तरह से आप इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे, ठीक है। इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो योर रिपोर्ट विल बी वेरी इफेक्टिव। क्या क्या कि आपने फैक्ट प्रेजेंट करने हैं, आपने इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, पैसिव वॉइस यूज़ करना है, थर्ड पर्सन में लिखना है, आई, माई, मी या फिर यू को इंक्लूड नहीं करना है, आपने पर्सनल ओपिनियन या फिक्टिटियस कंक्लूजन नहीं दिखाने हैं, आपने 5 W's का जवाब भी देना है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट लिखते हुए हम अपनी रिपोर्ट को बड़ा ही कैसा बनाएंगे, इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ और पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने होंगे। लेट अस टेक सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। ओके, चलिए आप देखते हैं कि कौन कौन सी पॉइंट हमें और ध्यान में रखने चाहिए। सम पॉइंट्स आर ऑल्सो डिस्कस्ड विच यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट। सबसे पहले, मेक श्योर यू यूज़ लैंग्वेज विच इज़ सुटेबल फॉर द ऑडियंस यू आर एड्रेसिंग टू। बिल्कुल सही बात है, हमने अपनी ऑडियंस को ध्यान में रखते ही अपनी लैंग्वेज को चूज़ करना है। जैसे कि अगर हम छोटे बच्चों के लिए कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो लैंग्वेज मस्ट बी सिंपलर हो, ठीक है। एंड इफ वी आर राइटिंग फॉर द लिटरेरी पर्सन, for the group of literary person, then we have to use somewhat the complex vocabulary so that they can think, so that it can reach up to their level. तो हमने लेवल देखना है कि हमारी ऑडियंस का लेवल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी लैंग्वेज को हम चूज़ करेंगे। जैसे कि ये कह रहे हैं अगर हम बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं तो हमारी वोकैबलरी सिंपल होनी चाहिए। ज़्यादा अगर हम कंफ्यूजिंग कॉम्प्लेक्स वोकैबलरी लेंगे तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स ये सजेस्ट किया जाता है कि आप लॉन्ग राइटिंग सेक्शन को, चाहे वो रिपोर्ट राइटिंग है, चाहे डिबेट राइटिंग है, चाहे आर्टिकल राइटिंग है, चाहे वो स्पीच राइटिंग है, आप सबको पैराग्राफ में डिवाइड करोगे। जो बॉडी होती है इनकी लॉन्ग राइटिंग सेक्शन की, उसको डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइड करोगे। और अपने आप को, अपने राइटिंग स्किल को बढ़ाने के लिए व्हाट यू विल डू, जितने भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर है उसको आप रिवाइज करेंगे। और क्या करेंगे, आप काफ़ी सैम्पल रिवाइज करेंगे। सैम्पल यू गेट फ्रॉम द न्यूज़पेपर और मैगजीन और फ्रॉम सम ऑफ द रेफरेंस बुक, एज मैनी एज सैम्पल्स यू कैन गैदर यू हैव टू स्टडी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जितने भी आपको अगर किसी सिचुएशन पे रिपोर्ट बनानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। 2 बार क्वेश्चन पढ़ना है हमने, बिकॉज इट्स मच एंड मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द आंसर इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत होती है, ना कि आंसर को। जब क्वेश्चन समझ आ गया तो आंसर खुद ब खुद हो जाता है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट इडियम एंड द फ्रेज, जिसका मतलब होता है कि रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, ठीक है। यानी कि डीप रीडिंग करना क्या होता है, रीड बिटवीन द लाइन्स होता है। इसका मतलब क्या है, हर एक चीज़ का मतलब समझते हुए हमें क्वेश्चन को समझ लेना है। क्योंकि एक बड़े फेमस हमारे साइंटिस्ट हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो भी कहते हैं, वो कहते हैं कि यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट सिंपली, यू डिडंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। कि अगर आपने किसी चीज़ को अच्छे से समझा ही नहीं है तो आप एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात होती है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं प्लान बिफोर यू पेन, लिखने से पहले अच्छे से प्लानिंग बना लीजिए। आपको बताया है मैंने, और प्लानिंग कैसे बनानी है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं करनी यहाँ पे। फॉर द प्लानिंग यू विल मेक अ रफ ड्राफ्ट ऑन योर लास्ट पेज ऑफ योर शीट, ठीक है।
शीट के लास्ट पेज पे आप लिख सकते हैं, रफ ड्राफ्ट बना सकते हैं, कहीं भी राइट हैंड साइड पे लाइन लगा के भी रफ ड्राफ्ट बना सकते हैं, ताकि आप रिलेवेंट पॉइंट्स को ही इंक्लूड कर सको, ताकि आप अपने मेन टॉपिक से डेविएट ना हो, ठीक है। इन दिस वे यू विल बी एबल टू मेक अ सीक्वेंस एंड यू विल बी एबल टू इंक्लूड ऑल द important information if you are making a draft first. Okay, after making the draft you have to present it in a very impressive way. Then after writing all the things you have to double check about the grammatical accuracy and the spellings, because of course yes, it related to the expression and expression carry 5 marks, so we just be careful about the expression part. Leave adequate number of the lines between the paragraph to make it look clean. Of course yes, between the paragraph we have to leave some space so that it will look very impressive. It will give the hint that the writer has well prepared and he has just presented it in a very meaningful way. Of course you can underline the main points, the theme which you want to highlight in the paragraph. Okay, but do not decorate so much, because you have to do all the things in a prescribed time limit. Okay, यानी कि एग्जाम खत्म होने के बाद आप अंडरलाइन कर सकते हो कि दिस थीम वी हैव हाईलाइटेड हियर. ओके, चलिए, मेक द स्मॉल सेंटेंसेस. बिल्कुल सही बात है, छोटे छोटे सेंटेंस लिखने हैं ताकि हम ग्रामेटिकल इनएक्यूरेट ना करें, ग्रामेटिकल एरर्स ना करें. तो उसके बाद हमें कुछ पॉइंट फिर दिमाग में रखने हैं कि हमें एक तो 5 Ws का आंसर देना है अपने फर्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है. व्हाट, 5 Ws में हमारा एक W है व्हाट, यानी कि नेम ऑफ द इवेंट और ओकेजन क्या है, वेयर कहाँ पे होना है, व्हेन डेट टाइम दीजिए हमें एक्टिविटी का, ठीक है. कहाँ पे होना है, ये टीचिंग से रिलेटेड है, सोशल वर्क है तो फिर स्कूल में होना है या सोसाइटी में कहीं और होना है, ठीक है. लास्ट में हमने क्या करना है, जितनी भी एक्टिविटी हुई हैं हमें उन पे कमेंट यानी कि एक्सप्लेन करना है, जितना भी हमने रिपोर्ट के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है उन सब को. उसके बाद देखिए, अब आपको एक स्पेसिमेन देती, एक सैम्पल देती हूँ मैं, जो है रिपोर्ट अबाउट एन इवेंट. किसी एक इवेंट के बारे में रिपोर्ट लिखी हुई है. ये इवेंट है एनवायरनमेंट डे के बारे में, ठीक है, सेलिब्रेशन ऑफ एनवायरनमेंट डे, अ रिपोर्ट बाय रवि शर्मा, ठीक है. ये लिखने के बाद सबसे पहले प्लेस लिखना है, डेट लिखनी है, न्यू दिल्ली 2 जुलाई 2020, ठीक है. हमने बता दिया प्लेस, ऊपर हमने कौन लिख रहा है रिपोर्ट उसका भी नाम लिख दिया, फिर हमने प्लेस भी बता दिया, ठीक है, डेट भी बता दी. उसके बाद कौन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ऑफ गुरु नानक पब्लिक स्कूल राजौरी गार्डन पार्टिसिपेटेड, यानी कि देखो पास्ट टेंस यूज कर दिया है, ठीक है. पार्टिसिपेटेड इन अ फंक्शन टू सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन 5 जून, कहाँ पे, विज्ञान भवन में, ठीक है. अब हमने इसी के अंदर बता दिया है कि हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं. 5 Ws का रूल बिल्कुल पहले पैराग्राफ में ही हमारा हो चुका है. साथ साथ ये दिन 30th एनिवर्सरी भी है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का. तो कौन कौन आए थे, क्योंकि जब भी हमारे इवेंट होते हैं, कोई भी कल्चरल प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई डे सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें हमने चीफ गेस्ट वगैरह के बारे में डिस्क्रिप्शन देना ही पड़ता है. तो अब बता दीजिए आप कौन कौन आया था. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी आए थे, ठीक है. दूसरे गेस्ट भी थे, जिसमें क्या थे, नरेंद्र मीना थे जो मिनिस्टर हैं स्टेट ऑफ फॉर एनवायरनमेंट के, ठीक है. रघुपति आए थे, वो भी कोई मिनिस्टर है. मीना गुप्ता, ये भी कोई सेक्रेटरी मिनिस्टर हैं. यानी कि जो वहाँ पे एमिनेंट पर्सनालिटीज़, एमिनेंट मतलब वेरी फेमस पर्सनालिटीज़ आई थी, उन सब का हमने नाम लिख देना है. अब ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन कि वहाँ पे चीफ गेस्ट कौन कौन आए हैं. अब हम प्रेजेंट करेंगे कि वहाँ पे हुआ क्या क्या था एक्चुअल में. तो स्टूडेंट्स ने प्रकृति वंदना को प्रेजेंट किया है, सॉन्ग डांस किए हैं, एक स्किट, कहाँ गए वो धरती का, कहाँ गया वो धरती का स्वर्ग, ये स्किट भी उन्होंने पेश की है, ठीक है. और फिर कुछ एक्सपर्ट्स थे, नेशनल म्यूजियम से कुछ एक्सपर्ट आए थे, उसके बाद स्कूल के भी कुछ एक्सपर्ट थे, डॉक्टर नाज रिजवी थी, फिर स्कूल की टीचर ज्योति कीमा थी, फिर उसके बाद राजविंद्र कौर, इन सब ने स्टूडेंट को डायरेक्ट किया है. सॉन्ग को प्रिपेयर कराया है किसने, हमारे एक टीचर भूपेंद्र कौर की गाइडेंस में, इंद्रजीत कौर की गाइडेंस में. मतलब ये सभी हमने अच्छे से बता देना कि क्या इवेंट हुआ और किस किस ने ऑर्गेनाइज कराया है. स्कूल चेयरमैन एस इंदर सिंह एंड द वाइस चेयरमैन श्री सिंह रतरा, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे. वोट ऑफ थैंक्स किसने दिया है, डायरेक्टर ने दिया है, जो कि नेशनल म्यूजियम के थे, डॉक्टर वेणुगोपाल थे, उन्होंने दिया है, ठीक है. यानी कि हमने इस तरह की जो इवेंट होते हैं उस रिपोर्ट में क्या क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया है
की हेडलाइन लिखी है। सही बात, हेडलाइन तो बहुत ज़रूरी है ताकि रीडर को पढ़ने से पहले पता चल जाए अबाउट विच वी आर गोइंग टू राइट। फिर हमने क्या किया है, 5 Ws के रूल को फॉलो करना है, यानी कि बता देना है अच्छे से। हाँ, सेकंड में हमने ज़रूर बताना है कि रिपोर्ट कौन प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन थर्ड में हम ये बता रहे हैं, यानी कि जब बॉडी स्टार्ट होती है तो हमने 5 Ws का रूल दे देना है। और फाइनल में हमने रिपोर्ट बता देनी है, रिपोर्टर के नाम के बारे में भी बता देना है। ठीक है, रिपोर्ट अबाउट द सर्वे। अगर सर्वे के बारे में कोई रिपोर्ट है तो देखो, सबसे पहले सर्वे का टॉपिक, ठीक है, किसने प्रिपेयर की है, यहाँ पे श्री पर्णा दत्ता ने, जो कि डेजिग्नेशन जरूर लिखना है, स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट है, उन्होंने प्रिपेयर की है। तो कहाँ पे हुआ है ये, न्यू दिल्ली में 5 जुलाई को हुआ है। वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंडक्टेड बाय द इंडियन डेंटल एसोसिएशन। तो सर्वे कब हुआ है, कहाँ हुआ है, किसने कराया है, इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने। क्यों कराया है, क्योंकि उन्होंने किया है 70% स्कूल गोइंग बच्चों को जो डेंटल प्रॉब्लम से पीड़ित है उनके बारे में किया है। स्पेशली किसके बारे में था, टूथ डिके और ब्लीडिंग गम्स के बारे में था। ठीक है, क्यों, क्या मेन मकसद था सर्वे का, द ओरल हाइजीन ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स इन इंडिया। ये मकसद था उनका, ओरल हाइजीन के बारे में पता करना। ठीक है, तो कैसे कंडक्ट कराया गया, ये रिपोर्ट हमने बतानी है कि 6 मंथ में कंडक्ट कराया गया है, जनवरी टू जून में। इसके लिए हमने रिनोन डेंटिस्ट ने विजिट किया है, बड़े जाने माने डेंटिस्ट ने विजिट किया है 1000 स्कूल को। ठीक है, और कंडक्टेड अ थोरो चेकअप ऑफ अबाउट 1.5 लाख स्टूडेंट्स, और इतने स्टूडेंट को उन्होंने चेकअप किया है। और एस्टॉन्डिंग, यानी कि चौंका देने वाला सच ये है कि 20% बच्चे ही ब्रश करते हैं दिन में 2 बार, यानी कि 2 बार तो रिकमेंड डॉक्टर्स ने किया है कि 2 बार तो ब्रश करने चाहिए, लेकिन डॉक्टर ने एम्फेसाइज किया है, एडवाइस दी है बच्चों को कि कम से कम वो 2 बार ब्रश करें। साथ में क्या करना है, समय समय पे फ्लॉसिंग भी करेंगे। फ्लॉसिंग का मतलब होता है धागे से या किसी और चीज़ से जो टिथ के बीच में क्या होती है, प्लैक वगैरह फंस जाता है, उसको निकालने के लिए की जाती है फ्लॉसिंग। ठीक है, तो हमने इस तरह की सर्वे रिपोर्ट में क्या क्या ऑब्जर्व किया है, हमने ऑब्जर्व किया कि हेडलाइन ज़रूर लिखनी है, हेडलाइन के नीचे लिखने वाला कौन है, फिर हमने पर्पस यानी कि 5 Ws के रूल को फॉलो कर देना है। फाइनल में फैक्ट दे दी हमने, फिगर के द्वारा बता दिया है। सो इन दिस वे वी हैव completed the report writing. Tomorrow we will also present with a new video about the report writing with some samples and some of more tips. Till then, thank you very much. Have a